Hello students, in this video lecture we are going to see an important type of matrix, that is the orthogonal matrix. This type of matrix is also very important for Z-double main. First we will see definition of orthogonal matrix. Orthogonal matrix क्या होता है वो पहले हम देखेंगे. Then we will see the properties, important properties of orthogonal matrix, and after that we will solve some important problems of orthogonal matrix using these properties. So let us start to define the type of matrix which is called as orthogonal matrix. So first we will see the definition of orthogonal matrix. So if A is a square matrix, if A is a square matrix, A कौन सा भी square matrix हो 2 by 2, 3 by 3, such that A into A transpose equal to I equal to A transpose into A, then A is called orthogonal matrix. So the definition is very clear. If there is a square matrix A whose product with its transpose, that is A into A transpose or A into A transpose equal to an identity matrix, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ लिया हुआ प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी ऑर्थोगोनल. A into A transpose and A transpose into A equal to identity matrix. For example, if I have this matrix A cos alpha minus sin alpha cos alpha, this is the matrix of order 2 whose elements in the first row are cos alpha minus sin alpha and elements in the second row are sin alpha cos alpha. So this is the orthogonal matrix, and this matrix will satisfy this condition because its product with its transpose will give identity matrix. Suppose if we try to find the product A into A transpose, so matrix A is cos alpha minus sin alpha cos alpha into its transpose. Transpose of a matrix is obtained by interchanging rows and columns of the matrix A. So first row will become first column and second row will become second column. So in first column we have to write cos alpha minus sin alpha, and in second row there is sin alpha cos alpha which we have to write in second column. So it is sin alpha cos alpha. So let us see what this product will give. So first row into first column, cos alpha into cos alpha cos square alpha plus minus sin alpha into minus sin alpha, so cos square alpha plus sin square alpha will give 1. Cos alpha into sin alpha minus sin alpha into cos alpha, so that will give 0. Sin alpha into cos alpha minus sin alpha into cos alpha will give 0. Sin square alpha plus cos square alpha will give 1, and this is the identity matrix. So product of this matrix A with its transpose is identity matrix I. Therefore this matrix A is called as orthogonal matrix. So this is the clear-cut definition of orthogonal matrix. But now we are interested to see the properties. इसकी properties हम पहले समझ लेते हैं. These properties are very important to solve the problems on orthogonal matrix. ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आती हैं तो आप प्रॉब्लम्स J-double E के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसमें आपका बहुत टाइम सेव हो सकता है.
So let us see the properties of orthogonal matrix. Orthogonal matrix is a square matrix whose product with its transpose gives identity matrix. So let us see the transpose of the matrix, that is properties of orthogonal matrix. So one by one we will see the properties of orthogonal matrix. See the first property of orthogonal matrix. If A is orthogonal, then A inverse equal to A transpose. See here, if A is an orthogonal matrix, then A into A transpose equal to I. अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. अब इन्वर्स की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से पता है. अगर A इंटू बी आई होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी और ए बी इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देन B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ A एंड दैट इज इक्वल टू A इन्वर्स. Similarly, A into A transpose equal to I, product of these two matrices is identity matrix. Then this second matrix, that is A transpose, must be the transpose of matrix A, therefore it is A inverse. So, therefore A inverse is equal to A transpose. So this is very simple property of transpose of matrix. अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा. See the second property. If A is orthogonal, then determinant of A is plus minus 1. किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा एक तो +1 होता है या -1 होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. दिस प्रॉपर्टी विल ऑल्सो सेव योर टाइम. सो हाउ determinant of orthogonal matrix is plus minus 1 we will see in second. Again, if it is given that A is orthogonal matrix, therefore A into A transpose equal to identity matrix. So determinant of A into determinant of A into A transpose is equal to determinant of A. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सेम होगी. सो this will give determinant of A into determinant of A transpose. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है. डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स and determinant of this identity matrix is product of diagonal elements, that is 1 into 1 into 1 is always equal to 1. So therefore determinant of this I is 1. So now determinant of A into determinant of A transpose. Now this is the important point. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश. ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज कैन बी ऑल्सो रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1. सो दिस विल गिव डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 1 and like this determinant of A will give plus minus 1. So this is the most important property of orthogonal matrix, that determinant of orthogonal matrix is always equal to plus minus 1. So here these were two properties. So this was second. First is if A is orthogonal matrix, its inverse is equal to its transpose, and in second we have just seen that if A is orthogonal, then determinant of matrix A is equal to plus minus 1. So now we will see the next third property. तो इसमें भी कुछ इसमें ही प्रूफ हो जाता है. एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल. हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है. सो व्हाट इज इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट. इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट. तो कौन सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है? इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0.
If determinant of matrix is not equal to 0, then its inverse exists, but determinant of orthogonal matrix is always equal to plus minus 1. Therefore this इसका मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट होगा. therefore every orthogonal matrix is invertible. So this was the property number 3. So let us see the next property number 4. Next property number 4. All these properties are very important to solve the problems on orthogonal matrix. तो हम 4th नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4. दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या दिया है प्रॉपर्टी नंबर 4 में? इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल. अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है. सो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल इफ इट इज गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल. सो इन द फोर्थ वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट ए इज ऑर्थोगोनल. सो ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ए अगर ऑर्थोगोनल है तो A into A transpose equal to identity matrix, and now we have to prove that A inverse is also orthogonal. So to prove that A inverse is orthogonal, we have to prove that A inverse into A inverse का ट्रांसपोज, इन्वर्स और इन्वर्स का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि A inverse is also orthogonal. So A inverse into A inverse transpose, this can be written as A inverse into A transpose का इन्वर्स. इन्वर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इन्वर्स सेम होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. इन्वर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इन्वर्स सेम होता है. नाउ इफ वी कंसिडर दिस मैट्रिक्स हैज A एंड दिस मैट्रिक्स हैज B, तो ये दिख रहा है B इनवर्स इंटू A इनवर्स. तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज AB इनवर्स. B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज AB इनवर्स. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. दिस इज द रिवर्सल ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. इसे हम रिवर्सल लॉ कहते हैं. सो B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज AB इनवर्स. तो पहले है A ट्रांसपोज इंटू A का इनवर्स. B inverse into A inverse is A into B inverse. So but already it is given that A into A transpose equal to I. So ये बनेगा I inverse, and inverse of identity matrix is always identity matrix. So therefore A inverse into A inverse का transpose identity matrix है. Therefore A inverse is what? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो इस तरह से इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गए. अब मुझे प्रूफ करने का है कि ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है जब ए ऑर्थोगोनल होता है. तो इसके लिए भी इन द सेम वे वी विल प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. सो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है. अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो दिस इज इक्वल टू आई. सो ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑल्सो गिविंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल. सो दिस इज property number 5, that is 4. If A is orthogonal, then both A inverse and A transpose are also orthogonal. Now see the next property number 5. If A and B are orthogonal matrices, then both product AB and BA, दोनों प्रोडक्ट AB and BA भी ऑर्थोगोनल होते हैं. तो इसे भी हम प्रूफ करेंगे. So see in the property number 5 that if A and B are orthogonal, then the products
AB and BA are also orthogonal. So in the 5 it is given that A is orthogonal, that is A into A transpose equal to I, and B is also orthogonal, therefore B into B transpose is also equal to I, because both are orthogonal matrices. तो हमें प्रूफ करने का है AB and B are also orthogonal. तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा AB and AB का ट्रांसपोज, AB into transpose of AB also give identity matrix. So here students, so using the properties of transpose ये easily proof होगा. AB as it is into AB transpose को हम लिख सकते हैं B transpose into A transpose. Reversal law of transpose of matrix. Now see here, this is A, this is associative law of multiplication of matrices, B into B dash into A dash. So B into A, B transpose into A transpose, A and A transpose को मैंने अलग लिखा है. So A but B into B transpose is identity matrix into A transpose, A into identity matrix is A into A transpose, and A into A transpose is again equal to identity matrix. So AB into transpose of matrix AB is also identity matrix. Therefore this matrix AB is orthogonal matrix. Similarly you can prove that BA is also orthogonal. Very easy. In the same way you can prove that the matrix B is also orthogonal if A and B are orthogonal matrix. So this was the property number 5, that if A and B are orthogonal, then matrix AB and BA are also orthogonal. The important properties are property number 6 and 7. इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का और इस प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज़ होता है. दीज प्रॉपर्टी नंबर 6 and 7 आर टाइम सेविंग रिजल्ट्स. इससे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर ये दो रिजल्ट्स आपको पता नहीं है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो बार बार हमेशा आपको यही कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I. तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है. आंसर तो मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा. तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, सो दीज टू प्रॉपर्टीज़ आर टाइम सेविंग रिजल्ट्स. सो हियर इसे आप अच्छी तरह से समझ लो. प्रॉपर्टी नंबर 6 and 7. तो मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पहले ही लिखा था. मेरे तरफ एक छोटा सा 2x2 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी तो इसमें लिखा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने लिखा था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा. दिस टू प्रॉपर्टीज आल्सो वेरी सिंपल. ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, वेरी सिंपल. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज़ 1. दिस इज़ अबाउट व्हाट? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का सम 1 होता है. फॉर एग्जांपल टेक फर्स्ट रो, एलिमेंट्स आर कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा. इन एलिमेंट्स की स्क्वायर की सम करके देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा? 1. टेक सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1. या सेकेंड कॉलम लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1. तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो उस मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट के स्क्वायर की सम हमेशा 1 आती है. मोस्ट वेरी सिंपल. तो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 6. अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7. मैं फिर से इस मैट्रिक्स को लिखता हूँ. प्रॉपर्टी नंबर 7 आप तब तक रीड कीजिए. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 7? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स इज 0. फिर से मैं लिखता हूँ,
मेरा मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इसे समझ लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी दो रो या दो कॉलम के, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। इफ़ वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, तो इनके प्रोडक्ट की सम 0 होती है। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा इज माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, and product of sin alpha into cos alpha is plus sin alpha into cos alpha. So this into this plus this into this will give 0. ओके, अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रो कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दिस विल आल्सो गिव 0। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के किसी भी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की सम हमेशा 0 होती है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को 3/3 में मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ आई हैव दिस मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इफ दिस ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल टू 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होगा। या कॉलम ले लीजिए कोई भी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 1 होगा। एनी रो एनी कॉलम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब 7 नंबर देखिए, कोई दो रो ले लीजिए या कोई दो कॉलम ले लीजिए। इफ़ आई टेक फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की सम ए इंटू बी प्लस डी इंटू ई प्लस जी इंटू एच, सो दिस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। या ये दो रो लीजिए, डी इंटू जी प्लस ई इंटू एच प्लस एफ इंटू आई will give 0. So like this, these are the two important properties of orthogonal matrix. So this was all about the orthogonal matrix. Definition is very simple, A into A transpose and A transpose into A equal to identity matrix, and the properties are like this. अगर A ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर होता है, ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट +-1 होता है, हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। ए ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्स और ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होता है, ए एंड बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी एंड बी ए भी ऑर्थोगोनल होते हैं। एंड किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट के स्क्वायर की सम 1 होती है, एंड किसी भी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की सम हमेशा 0 होती है। सो स्टूडेंट्स, these are the very important properties of the orthogonal matrix, and we will now solve the important problems of orthogonal matrix for JEE exam. So in just 2 minutes we will take the problems of orthogonal matrix. So these are the problems of orthogonal matrix, and we will solve these problems using the properties of orthogonal matrix, जिसे कि हमने अभी देखा है 7 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो उसका इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने में होगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 and 7, दिस 2 टाइम सेविंग रिजल्ट्स, ये भी हम इसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज गिवन दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हमें पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A मैट्रिक्स। So here students, in the first question is orthogonal matrix दिया है, is orthogonal matrix, तो orthogonal matrix के अभी ये क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट पूछा है, तो what is the property of orthogonal matrix about its determinant. So अगर A orthogonal matrix है, A अगर orthogonal matrix है
तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, +-1। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। एडजॉइंट ऑफ 2a एक मैट्रिक्स के उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की। तो हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मालूम है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n-1. n is the order of the matrix. So here order of matrix A is 3. So here we have to use n equal to 3. And this is the standard formula. adjoint of a का डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे आया है 2a, तो यहाँ पे a को रिप्लेस करेंगे हम 2a से, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a to 2a to the power n-1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a to the power n-1 n इक्वल टू 3, 3-1 2 पावर हो जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n-1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a to the power n-1 n इक्वल टू 3, 3-1 इज 2, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ के ए? सो डिटर्मिनेंट ऑफ के होता है k to the power n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ e, वेयर k इज अ स्केलर। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज k to the power n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज 2 to the power n, वेयर n इक्वल टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a और a उसका स्क्वायर। यूजिंग दिस रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ k इज k to the power n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, determinant of 2a is 2 to the power n, n is 3 into determinant of a. Now we will solve this. Now it is very easy. So this becomes 2 to the power 6 into determinant of a square. 2 to the power 6 is 64 and determinant of a is +-1, तो उसका स्क्वायर 1 होगा. So answer to this question is 64. So this was the प्रॉब्लम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1. सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में जो अननोन आए हैं ए बी सी, उसकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की. तो इसे हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं? सो हियर गिवन मैट्रिक्स इज, लेट दिस मैट्रिक्स इज ए, एलिमेंट्स आर 0 2 b c, a b minus c, a minus b c. सो दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. तो जस्ट वी हैव सीन किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हर एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स के स्क्वायर की सम 1 होती है. तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. अगर मैं कॉलम फर्स्ट कंसिडर करता हूँ तो इसके हर एक एलिमेंट के स्क्वायर की सम 1 होगी, यानी 0 स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर 1 होगा. तो 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 and a square is 1/2, a equal to ±1/2. a की वैल्यू मिल गई. now we can find the value of b using the result for second column. तो इसके स्क्वायर की सम, हर एक एलिमेंट के स्क्वायर की सम देखिए, तो यहाँ पे बनेगा 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो दिस विल गिव 6b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो b बनेगा ±1/√6. Similarly here for third column we will use c square plus c square equal to 1. So this is 3c square equal to 1. So c will be equal to ±1/√3. So a is ±1/√2, b is ±1/√6 and c is +-1/√3. अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर हमें ओरिजिनल डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ता है, a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई. इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में इक्वेट करके फिर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल सकती है. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन सेव द टाइम. लेकिन ऐसा ही रिजल्ट हमें
क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज़ करने का है। ए मैट्रिक्स दिया है, वो भी ऑर्थोगोनल है। वी हैव टू फाइंड द अननोन्स एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई पूछा है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया है ए मैट्रिक्स ए। अब इसको मैं लिखता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स लिखता हूँ। सो 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, -2/3, x/3, 2/3, y/3. So this matrix is orthogonal. We have to find the values of x and y and then x plus y. So to find the value of x plus y हम लास्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट की सम लेता हूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो 1/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 2/3 प्लस ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2/3 इंटू 1/3 ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, x/3 इंटू 2/3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2 + 2 + 2x, 2 + 2 + 2x अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 0। तो ये 2x बनेगा -4 एंड x की वैल्यू बनेगी -2। तो हमें x मिल गया है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, we will take the column number 2 and column number 3. Okay, so sum of product of second column and third column will be always equal to 0. So 2/3 into 2/3, 2/3 into 2/3 plus 1/3 into -2/3 plus 2/3 इंटू y/3 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 - 2 प्लस 2y अपॉन 9 इक्वल टू 0। सो 2y इक्वल टू -2 एंड y विल बी इक्वल टू -1। 4 - 2 is 2, -2, y is equal to -1 and we have to find the value of x plus y. So -2 - 1 - 3 is the answer to this question. So x plus y is what? -3. Okay. So this was the question number 3 and see this is the fourth question. This problem, ये problem JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, very nice problem. Here P matrix is given, A matrix is given, Q matrix is PA P dash. We have to find P dash into Q to the power 2007 into P. A matrix क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द मैट्रिक्स P, ये मैट्रिक्स P दिया है। तो ये दिस इज द क्लियर कट दिख रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से। मैंने अभी एग्जांपल बोला था cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस साइन प्लस माइनस होता है, तो वो दैट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 4 ये पी मैट्रिक्स की अगर हम वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos 30 है √3/2, ये 1/2, दिस इज -1/2 एंड दिस इज अगेन √3/2। तो इनके स्क्वायर करके देखिए, फर्स्ट रो अगर देखिए 3/4 + 1/4 1 आता है, ये 1/4 + 3/4 1 आता है। इनके सम की प्रोडक्ट का सम देखिए -3/4 + 3/4 0 आता है। सो दिस इज क्लियर कट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, P इंटू P ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन हमें पता है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल ही है। तो ऑर्थोगोनल है तो P डैश इंटू P दैट इज P ट्रांसपोज इंटू P, या P इंटू P ट्रांसपोज क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P इंटू P ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नाउ Q मैट्रिक्स इज गिवन एज P A P डैश, Q matrix is given as P A P dash, and we have to find this matrix. So this matrix is P dash
इंटू क्यू टू द पावर 2007 इंटू पी, तो ये पी डैश क्यू इज पी ए पी डैश, इसका पावर 2007 है तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं पी ए पी डैश इंटू पी ए पी डैश। ये कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2007 टाइम्स, 2007 टाइम्स इंटू दिस मैट्रिक्स पी। इस टाइप को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पी डैश क्यू टू द पावर 2007 इंटू पी, ये पी डैश एज इट इज़ लिखा है मैंने, ये आखिरी वाला पी भी एज इट इज़ लिखा है। क्यू मैट्रिक्स की जगह पे मुझे पी ए पी डैश लिखने का है, लेकिन उसका पावर 2007 है तो उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करने पड़ा, कितनी टाइम्स उसका प्रोडक्ट होगा? 2007 टाइम्स। ओके, अब देखिए एच पी इज ऑर्थोगोनल पी डैश इंटू पी एंड पी पी डैश इज आई, तो ये देखिए यहाँ पे ये पी इंटू पी डैश ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, एंड लास्ट में भी ये पी ए पी डैश आएगा 2007 टाइम्स, जहाँ पे वो होगा तो यहाँ पे भी पी डैश इंटू पी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब बीच में देखिए, अब ये पी डैश पी कैंसिल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पी डैश पी कैंसिल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये देखिए पी डैश पी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ये पी डैश पी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, पी डैश पी ये सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलते जाएंगे। बचेगा सिर्फ ए, और वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2007 टाइम्स। तो ये बनेगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसा इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें 2007 टाइम्स। सो इट इज़ ए टू द पावर 2007। तो हमें वो मैट्रिक्स निकालने के लिए, यानी पी डैश क्यू टू द पावर 2007 इंटू पी यानी ए मैट्रिक्स मिल गया है। तो इसके लिए हमें ए मैट्रिक्स दिया है, तो हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 0 1 इंटू फिर से 1 1 0 1, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 + 0 1, 1 + 1 2, 0 + 0 0, 0 + 1 is 1. So this is matrix A. Again if we find the matrix A cube, अगर हम A cube मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या मिलता है वो देखेंगे। मैट्रिक्स ए क्यूब, तो ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए 1 1 0 1, तो ए क्यूब मैट्रिक्स क्या मिलेगा? 1 + 0 1, 1 + 2 3, 0 + 0 0, 0 + 1 is 1। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 1 0 1 सेम है, यहाँ पे 2 आया है। ए क्यूब मैट्रिक्स में 1 0 1 सेम है, यहाँ पे 3 आया है। सो लाइक दिस अगर हम ऐसे ही सॉल्व करते गए तो ए टू द पावर 4 पे यहाँ पे 4 आएगा, बाकी एलिमेंट सेम हो गए। तो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ए टू द पावर 2007। सो ए टू द पावर 2007 यानी ये मैट्रिक्स, और ए होगा ये 3 एलिमेंट सेम 1 0 1, और यहाँ पे 3 के जगह पे आएगा 2007, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, these were the very important problems on the properties of orthogonal matrix. So how to use the properties of orthogonal matrix आपके समझ में आया होगा। So okay students, we will stop here and we will meet again with new concept and new problems for JEE Main. Okay.